شاہ صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور تلاوت دیں قرآن پاک کریں باواز یہ درد صلی اللہ جیسا کہ کاروان عہدے کے زیر انتظام اتنے سال بھی ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی اور سال بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد سعادت نصیب ہوگی اور چادر جو لے کے جائیں گے اس میں ضرور اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ حرم کی جو تعمیر آپ کے سامنے ہو رہی ہے آپ ممرین کی تعاون سے ہے اسی تعاون کو انشاءاللہ آپ جائیے کہ محمد وعلی محمد صلوات پڑھنے کی بات صلی علی محمد وعلی محمد العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلاۃ والسلام علی سیدہ وخلیل وسیعی ویخیہی عالم صلوات اسد اللہ الغالب غالب لا کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب مجھے شراب پلا کہ میں بے ڈر شرابی کے رنگ میں اور مظہر ذات خدا سے جلی بنتا وہ بکھرے ہوئے اصحاب نبیوں کے تمام ارے بنا پائی تیری او جاگنے والے کو محروم صلوات ذرا آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں ہم خود نہیں آئے ہزاروں بستے ہیں دنیا میں کروڑوں محب اہل بیت ہیں جن کو بلایا جاتا ہے وہ آتے ہیں آپ اس بی بی کے دعوت نام پہ خصوصی یہاں آئے بیٹھے ہیں یہ مجلس ہماری محتاج نہیں بلکہ ہم اس مجلس کے محتاج ہیں آپ تھکیے گا نہیں یہ کاروان عہدے کے جو سالانہ انتظامات اپنے دربار میں قبول مقبول فرمائے ہر سال یہ انتظام کرتے ہیں خصوصی زائرین کے لیے مصطفیٰ دا ہے جنت حسین مصطفیٰ دا ہے جنت جنت حسین دی
ساڑھے 18 ہاشمی جوان ٹر گئے مڈی اکھاں دا نور مڈا کمر ٹر گئے مڈی کمر دا زور مڈا ویر عباس لے گئے وہ تینڈا ہاتھ نے پڑھنا کوئی نہیں ڈرتا کیوں ہے تو خنجر چلا چلا لے معطل ہے تے گال کیا دور او پیو فیض رسائے کل عالم دا دی چادر تو مجبور کے منظور او رب جانے کیویں بی بی کر گئے چھتری شہر عبور آدھا پیا حسین مظلوم دی میت تے اجاں بھیڑ غریب نائی او بے غیرت شام دے انہاں لوکاں نے تے آلہ جو تے لوٹی پائے پوشاک لہائی او انج لاش لٹیں دی ویرن دی کنڈ کر گئی ہزار راجہ عزادار منی آقا امام مظلوم دے سین مسافرہ شام دی خدمت جائے بیٹھے منی آقا ذاتی جناب دیاں زیارتاں قبول و مقبول فرمائے 11 محرم دے دن میڈی سین آئی ہے ویر دی میت دے میرے آقا فرمائے دین میڈی شہید ہویاں بہت مدت گزر گئی ہے تو بڑی دیر دے بعد آئی میڈی سین فرمائے دیا بے ویر مائے زینب دی مجبوری بن گئی آئی میڈی آقا فرمائے دین کیڑی مجبوری آئی میڈی سین فرمائے دیئے وہ اجا خونتا ہر تینڈی گردن دا تے میڈا ویرن باندھنائی ہویا او ہک دستا گھن او بدماشا دا تے آش مر گیا بچ گیا ہو در تینڈی دھی دے میں کو قتل دینا بھول گئے عزادار منی آقا امام مظلوم دے 1365 میل تے چھتری شہر عبور کر کے میری آقا زادی دمشق دے شہر دے کولان پہنچی استاد ذاکرین سید امیر حسین شاہ بخاری دا لکھو یا باندھ سید مرحوم پڑھ دیان نہیں پل تھی خاتون دی تھی تے ایک حکم دنال لائی گئی او تاریخ گواہے 3 دن پورے ہتا شام دے بار رکائے او
پیدل ٹرن نے دا حکم تھے تے جدہ ساری شام سجائی گئی او 1.25 لاکھ بدماش دے ارمان اس گل دے قبلہ 1.25 لاکھ بدماش دے مجمع اندر بن چادر سین پھرائے جائے میں نے بازاران دے بھئی منادی ہوئی ہے قیدی آگئے آسمان دی گلیز آئیے بازار کیا ڈٹھا ہے ایک 72 سار کرے دے میرے آقا امام مظلوم دا سار آسمان دی گلیز نے ڈٹھا ہے اے منظر ولی ہے جناب حضرت آسمان دے قربان کیا دیئے تو آدیاں میں سردار مدینے دے قرآن بہت سونا پڑھ دیں سردار زادی ایک منظر بیٹھائیاں اللہ جانے اس اپنی مستورات دنال جڑیاں دیاں گنیزان انہاں نو ہدیے بن کے اس ضعیف نو آگ رستہ چھوڑے میں سردار زادیاں شام دی نو کے نیزہ تے جڑا سار قرآن پڑھ دے ان کو بھی ملنا جانیاں جڑی سردار زادی مستورات دی سردارے ان کو بھی ملنا جانیاں کنیزائیاں جناب سجاد جس جگہ تے تجریف فرمائیں کنیزادیاں ساڑی سردار زادی تنی جڑی سردارے کافلہ دی ان کو ملنا چاندی ہے رستے چوٹ بن میرے آقا دے لابھل لین آج شام دی سردار زادی ہیں کدھا تو میں نہیں دائیا میں کنیزہ نے جو ایک کلام سنی ہے اپنی سردار زادی نو آج کی آدیاں جنہوں تو پیاد ہیں جنہوں تو پیاد ہیں رستے چوٹ بن او بیمار آدھے او کہہ دیا رہے تو کتا میں نہیں دائیا میں جائے ملے آسمان نے گل سنیے میرے آقا سجاد دے قریب آئیے قریب آکے جڑی جناب آسمان نے گل کی تھی آخری بندے قبلہ مسائب دے وچ ہلنا جلنا نہیں چاہیدہ سیدہ دا دربارے میں نے طرف توجہ رکھو آ گئی ہے اس مقام تے جتھے میرے آقا چوتھے امام حضرت سید الساجدین تشریف فرمائیں آسمان نے آن کے جڑی گل کیتی ہے جناب دے سامنے عرض پہ کردہ آخری بہن جناب آسمان میرے آقا دے قریب آکے آدیاں تو کتوں دا بسدا او کہہ دیئے تے کیا وقت ڈوائی یادے او دس میں جو تینڈی ہائے وہ دائی رہیاں کیا تینڈا نام سجا دے کہ تن مہنڈے وچ ورم گڑن تئی شام دی غلط ہوا دے او دس کیڑیا زینب او جڑی نال تہنڈے عطائیے با گردا دے بواز بلند صلوات کاروان عدی کی طرف سے تبرکات تقسیم کیے جا رہے ہیں خدا تعالیٰ عبران شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کیونکہ امام حسین اسلام نے 1,26,000 کا نمبر کی محنت کو بچایا آج کے دور میں اس زیارت کو سمجھیے تردیدی حید کر کے گائیے جو اس دنیا میں باقی انہوں نے کار زنگی انجام دیا ہے کار زنگی ہمیں سے بھی تبدیلی آئے آپ سب و صلات کے لیے پابند ہو جس طرح آل بیت کہتے ہیں کہ آج کس پورے شور دور میں یہ تشیع جو ہم تک پہنچے ہیں بزرگوں نے بڑی محنت سے بڑی مشکلات سے قربانیاں دے کر ہم تک یہ پہنچایا ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تشیع کو اس اولاد اگلی اولاد تک منتقل کرے گی اگر صبح کی نماز کے بعد جس گھر میں اسی زری کی حیرت کے لیے لا رہے ہیں خدا تعالیٰ آپ کی زیارت آپ کی حاجات آپ کے ذمہ جی قبول فرمائے گا آج بلند صلوات جی یہ اس وقت جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ در رحمت جو ہے
یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس کا دروازہ ہے، اور اس وقت جس وقت ہم یہاں پہ کھڑے ہیں حرم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام زائرین جو دن بھر یہاں پہ پرساداری کرتے رہے ان کو اس وقت حرم سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس وقت کسی کو حرم میں اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس وقت ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ڈی ایم ڈیجیٹل کے چیئرمین جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کے ہاتھ میں ایک چابی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ چابی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے اعزاز، دنیا کے سب سے بڑے میڈل سے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج اس وقت جب سب کو اس حرم سے فارغ کر دیا گیا، اس وقت حرم میں آنے کی خصوصی طور پہ اجازت دی گئی ہمارے قافلے کو، اور ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کے ہاتھ میں یہ چابی دی گئی کہ اس وقت آپ اس حرم کا دروازہ کھولیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت فیلنگز آپ کی کیا ہیں؟ بخاری صاحب السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ میں بخاری صاحب بتا نہیں سکتا کتنا میں خوش ہوں، اور کتنا بڑا یہ آنر ہے میرے لیے کہ میرے پاس یہ چابی ہے، اس دربار کی چابی ہے۔ I can't really explain, no words for it۔ تو میں اپنے سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہیں لے کے آئیں، اور یہی مقام پر وہی چابی ہے سے ہر کسی کو موقع ملے یہ کھولنے کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، واقعی اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا اعزاز جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کے ہاتھ میں یہ چابی در زہرا کے لاڈلی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اس در رحمت کی، اور خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب کا، جن کی کاوش سے، جن کی محنت سے آج ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا، اور کاروان حیدری کے تمام لوگ اس وقت حرم میں یہاں پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ سب دنیا کو جو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ جو آتے ہیں سارا دن پرساداری کر کے، اس وقت ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور حرم کے تمام دروازے جو بند کر دیے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب میرے ساتھ ابرار حسین شاہ صاحب، میں ان سے بھی کہوں گا شاہ صاحب خصوصی طور پہ شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا کہ آج ہم اس وقت یہاں پہ کھڑے ہیں کہ جب سب کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور بی بی کے اس دروازے کے ہمارے لیے کھلے ہیں، اور چابی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، میں اپنے لیے بہت اعزاز سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اور آپ لوگوں کو یہ سعادت ہوئی ہو دروازہ کھولنے کی، اندر جانے کی، اس طرح ہر ایک کو سعادت یہ نصیب ہو، اور میں خصوصی آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں، اور شکریہ ڈی ایم کا کہ ہمیں اتنی کوریج دے گا، شکریہ، تھینک یو۔ بخاری صاحب میں ایک شاہ صاحب کے لیے ورڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے انتظام دیکھے ہیں لوگوں میں دیکھے، یہ نہیں، لیکن جو انہوں نے انتظام کیا یہ یہاں آنے کا لوگوں کے لیے، اور یہاں میں اتنے پیار سے خلوص سے کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ ان کے لیے اور ان کی فیملی کی دعا کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی اس وقت کاروان حیدری جب پرساداری کے لیے اندر آ رہا ہے، ہم زیارت پہ کھڑے ہیں ثانیہ زہرا امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا کی وہ دکھی بہن جو یوم عاشور کربلا میں جب ساری شہادتیں ہو چکیں تو 11 محرم کو جو سفر شروع ہوا 1400 میل کی مسافت طے کرتی ہوئی بی بی اس شہر دمشق، شام کے اس شہر دمشق میں پہنچیں، اور پھر یہ وہ جگہ دمشق کا ایک قریب ترین علاقہ جس کو سیدہ زینب کے نام سے آج جانا جاتا ہے، یہ سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار کی جاگیر جہاں پہ آج یہ بی بی کا حرم واقع ہے، یہ بی بی کی زیارت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے یہاں پہ کھڑے ہو کے زیارت کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ في الدنيا زيارتكم أن يرزقني في الآخرة شفاءكم وأن يسقيني من حوضكم السلام عليكم لا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا
मुसलमाना लुटिया विच करबल इना मुसलमाना हैरान ना हो तेरा वीर जवान टोरिया विच मकतल तेरा वीर जवान हैरान ना हो सुगरा मैं ज़ैनब मेरी चादर कोई नहीं सूराए काफ तिलावत कर मेरी चादर कोई नहीं बाजार बड़ी सड़क खड़ी बैठ करे बिन बाजार बड़ी सड़क खड़ी बैठ करे मर गए इस वक्त मैं जिस मज़ार अक़दस पे खड़ा हूँ जिसको सानिय ज़हरा कहा जाता है, जिसको इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन और वो बहन जिसने बहन होने का हक़ अदा कर दिया हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये मज़ार अक़दस जो आपको नज़र आ रहा है। आज ये चेहलम का दिन, इमाम आली मकाम और शहदाए करबला का चेहलम, लाखों की तादाद में दिन भर यहाँ पे ज़ायरीन आते रहे पुरसा देने के लिए इमाम की बहन को। और ये वो शहज़ादी 10वीं मुहर्रम को यौम आशूर को मैदान करबला में जब सारी शहादतें हो चुकी और फिर 11 मुहर्रम का जब सूरज तुलू हुआ, यजीदी लश्कर की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ कि तमाम ख़ानदान रिसालत की बीबियों को कैद करके इन बीबियों को कूफा और फिर कूफा से शाम तक ले जाया जाए और फिर 1400 मील की मसाफत, खुदा करे कि तमाम दुनिया के मुसलमान इस मुल्क शाम में आके देखें कि इस काफले को कूफा से कभी हलब, कभी दमिश्क, शाम का हर बाजार, हर गली, हर कूचा फिराया गया ख़ानदान रिसालत के काफले को। और इस काफले के आगे आगे शुहदाए करबला के सर जो नेदू पे बुलंद थे वो आगे आगे चलते रहे। बीमार करबला हज़रत
इमाम सज्जाद जो इस काफले के मुहारी थे वो आगे आगे चल रहे थे और इन बीबियों की चादरें भी छीन ली गईं और फिर इस डर से कि कहीं ये अपने हाथ अपने सरों पर रख अपने बालों को छुपा ना लें, कहीं ये सैयदजादियाँ पर्दा ना कर लें, तमाम सैयदजादियों के हाथ पुश्त के पीछे रस्सियों से बांध दिए गए। और फिर जब ये काफिला सादात दमिश्क पहुंचा और फिर वो बाज़ार जिसको बाज़ार शाम कहा जाता है, जो बाज़ार यजीद के दरबार तक जाता था, मेरी मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह और उनके साथ सैदानियाँ और वो लुटा हुआ काफिला 3 दिन तक उस बाज़ार शाम में 3 दिन तक वो काफिला 15 अज़ानें सुनी गई उस बाज़ार में। और फिर शामियों ने जो इस्तकबाल किया इस काफिले का, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। घर आए मेहमानों का जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया, छतों पे शामियों के बच्चे, शामियों की औरतें अपनी अपनी झोलियों में पत्थर डाले बैठी थी। कोई कह रहा था कि बागी की बहन आ रही है, कोई कह रहा था बागी का बेटा आ रहा है, कोई कह रहा था बागी की बेटी आ रही है। और फिर जब ये काफिला बाज़ार शाम से होता हुआ दरबार यजीद के दरवाजे पे पहुंचा और जब यजीद को इतला दी गई कि लुटी हुई ज़ैनब का काफिला आ गया, ये बगैर शराब के नशे में धुत अपने शराबियों की महफिल में बैठा हुआ, टस से मस न हुआ। और फिर ये काफिला ज़ैनबिया 9 घंटे तक दरबार में तलबी के इंतज़ार में 9 घंटे तक उस दरवाजे पे खड़ा रहा जिसको दरे साद आज भी कहते हैं। और 9 घंटे के बाद फिर ये बीबी दरबार में दाखिल हुई और दरबार में बैठे उन लानतियों ने, उन बेगैरतों ने वो जुमले कसे शहजादी ज़ैनब के कि मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं कि मैं अदा कर सकूं। तो ये उस मखदूमा का रोज़ा अक़दस है, ये उस मखदूमा की ज़रिए है जिसके ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हर साल आते हैं और अपनी दिली हाजात के लिए दुआएं करते हैं और मौला उनकी दुआएं सुनता है। इस वक्त बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़री पे खड़ा हूँ और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे जमा होते हैं। मेरे साथ एक मेरी बहन जो यूके से, मैनचेस्टर से यहाँ ज़ियारत करने के लिए तशरीफ़ लाई है। मैंने सिर्फ अपनी बहन से ये पूछना है कि आज आप बीबी को उनके भाई का, उनके बेटों का पुरसा देने के लिए आज इमाम के चेहरम पे तशरीफ़ लाई हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? फीलिंग क्या होनी, मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत औरत समझती हूँ कि जिसने बीबी का तवाफ़ किया है। और इस वक्त रात के 2 बजे हुए हैं और सारी दुनिया हरम से बाहर है, सिर्फ हमारा काफिला जो है वो ये सादत हासिल कर रहा है। और मेरे मौला पंजतन पाक की लाख लाख मेहरबानी है कि जो इस बीबी के दरबार में आने दी है। पहली तो बात ये है कि जो हमारी ज़ियारत है वो हमें नसीब हुई है। उसके बाद ये है कि ये तो बड़े मुकद्दर की बात है कि बीबी की जाली को चूमें और बीबी की तवाफ़ करें। और अल्लाह DM डिजिटल वाले डॉक्टर लियाकत को सलामत रखे, उनकी मदद से और इब्रार शाह की मदद से ये जो काम है पाया तकमील तक पहुंचा और हमें ये सादत नसीब हुई है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो हमने हासिल किया है, आज मैं पहली दफ़ा आई हूँ और मैं वाकई मुकद्दर वाली अपने आप को समझती हूँ कि जो मुझे ये सादत नसीब हुई है। जो लोग अभी तक नहीं आ सके उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनको मैं ये कहूँगी कि आप इब्रार शाह साहब से तावन करें और उनके काफ़िले में ज्वाइन करें और उनके साथ आएँ। और इंशाअल्लाह ताला वो हर साल हमें उन्होंने बीबी के हरम की चादरें भी दी हैं तोहफे में और उन्होंने ये सारा इंतज़ाम उन्होंने महकमा औक़ाफ़ से मिलकर ये किया है। और अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में बरकत डाले। उन्होंने बहुत ही अच्छा ये इंतज़ाम, पहली दफ़ा उन्होंने ये जो हरम का पूरा खोला है मर्दों औरतों की साइड, सिर्फ इस काफ़िले के लिए, कारवान हैदरिया के लिए। और ये बड़ी खुशकिस्मती है। मैं तो यही कहूँगी कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात अपने इब्रार शाह साहब से तावन करें और उनके काफ़िले में आएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और मेरी बहन मेरे साथ जो यूके से खुसूसी तौर पे यहाँ पे ज़ियारत के लिए तशरीफ़ आई हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आप पहली बार यहाँ पे आई हैं या पहले भी आप आ चुकी हैं? ना, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, हम लंदन से आए हैं। अब बीबी के
ज़ियारत पे बीबी को पुरसा देने के लिए आए हैं। आज चूँकि चेहलम है, बीबी के भाइयों का पुरसा, बीबी के बेटों का, भतीजों का, भांजों का पुरसा, क्या फीलिंग है आपकी? ये फीलिंग तो है ना जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसे ये जो समा हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह ये बीबी को हम सब लोग पुरसा दे रहे हैं। ये जो दीन है ना, जो दीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दीन को लेकर आए थे, और उसके बाद हज़रत आदम से बाद हज़रत नूह, हज़रत ईसा, जनाब इब्राहीम, जनाब ईसा, जनाब मूसा, और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा अफ़ज़लुल अंबिया इस दीन को लेकर आए। लेकिन इस दीन की कश्ती जो थी वो भंवर में फंसी हुई थी। एक वक्त आया था जबकि तागूती ताकतें और यजीदी कुव्वतें इसको थपेड़े मार रही थी, तो उस वक्त जो है ये इस दीन को ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की को जो रहबर हो, ऐसे शख्स की जो खून देकर कुर्बानी देके इस दीन को बचाए। तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन को बचाया, और उन्होंने अपनी बच्चों की, अपनी भाइयों की, भतीजों की, अपनी औलाद की कुर्बानी पेश की। तो हज़रत बीबी ज़ैनब सईदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी चादर को बादबान बना के इस दीन की कश्ती को अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। किसी ने क्या खूब कहा था कि वाक़या करबला में रंग दोनों ने भरा, इब्तदा हुसैन ने की तो इंतहा ज़ैनब। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। इस वक्त मेरे साथ मेरी भाभी मिस्टर डॉक्टर लियाकत मलिक जो खुसूसी तौर पे मैनचेस्टर से तशरीफ़ लाए हैं। आज बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के भाई का चेलम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत पे आज ये पुरसा देने के लिए तशरीफ़ लाई हैं। मैं उनसे सिर्फ पूछना चाहूँगा कि आज उनकी क्या फीलिंग है यहाँ आके? इस मौके पर बिल्कुल फीलिंग्स का कोई भी नहीं बता सकता। जो महल जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त एक पर्सनल फीलिंग है, और ये जो फीलिंग है किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते। वी आर वेरी वेरी privileged to be here. बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत पे खड़े हैं, और मेरे साथ हैं डीएम डिजिटल का ऑपरेशन मैनेजर जनाब रहील अंजम साहब जो खुसूसी तौर पे यहाँ पे आए हैं। आप लोगों को जो अभी तक आप देख रहे हैं वहाँ पे डीएम टीवी पे, ये सब इनकी काविश, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ दरबार पे पहुँच के जो आज इनकी फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला का चेहलम है, और तमाम लोग आज अज़ादारी कर रहे हैं उनकी हमशीरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ। रहील साहब क्या फीलिंग है आपकी? मैं सब अगर हकीकत पूछे मैं सब कुछ बयान नहीं कर सकता। मेरे मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। यही जज्बात है इस वक्त यहाँ पे हर आए हुए इंसान के, यही जज्बात है कि काश हम लोग उस वक्त होते जब ज़ैनब शाम के बाज़ारों में चादरें मांगती रही। आज यहाँ पे अभी अबरार शाह साहब तमाम लोगों को चादरें तकसीम कर रहे थे, लेकिन वो वक्त था कि ज़ैनब चादर करती रह गई और लोगों ने पत्थर बरसाए, चादर किसी ने नहीं दी। मेरे साथ एबर ट्रैवल के लंदन के मैनेजर जनाब अरशद साहब, मैं उनसे भी चाहूँगा कि आपकी क्या फीलिंग है इस वक्त? बुखारी साहब, फीलिंग क्या बयान करूँ, अल्फाज नहीं है, और मेरे एक रोंगटा ये कह रहा है कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि हम गुनाहगारों की हाज़िरी बीवी के दर पे हुई है। और मैं यही आपसे दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इस वक्त मेरे साथ बैरिस्टर नताशा मलिक खड़ी हैं जो मैनचेस्टर से खुसूसी तौर पे यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदादारी करने के लिए उनकी हमशीरा, उनकी बहन जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दरबार पे, और मैं चाहूँगा कि बैरिस्टर नताशा मलिक की मैं फीलिंग्स पूछूँ कि इस वक्त यहाँ पे आके क्या फीलिंग है आपकी? It's so overwhelming. It's just like a spiritual healing to be part of so much history, to be part of this day with people that think like you, feel the same things as you. It's just, I can't describe the feeling. You know, we hear the stories on the TV, we read the stories in the books, we've been listen to lectures even by yourself, and it's only until you come here and you realize that it's history in its place and you see what's happening. It's just amazing. I can't describe it.
नताशा, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी तक यहाँ पे नहीं आ सके? You have to come here. You must come here. It's a lifetime, once in a lifetime experience, and it's the best experience I've ever had in my 24 years. I can't describe it any more than that. आपकी अपनी क्या फीलिंग है कि आप अगर दोबारा ज़िंदगी में मौका मिले तो आप यहाँ पे आना चाहेंगे? Definitely. Inshallah, I want to come every year if I can. माशाल्लाह. I really do, and I want to go to Karbala as well. माशाल्लाह. और मैं समझता हूँ जी कि मेरे तमाम मुसलमान हर घर की बेटियों का ये जज्बा होना चाहिए. It's not about different sects or anything like that. It's about Islamic history, and this is something that we all have to embrace and all have to learn about. And we should be proud of it as well. And we're all in mourning for this great loss in our history. And every Muslim around the world should make these visits all over the world. बहुत शुक्रिया नताशा. बहुत अच्छा जुमला कहा नताशा ने. तमाम मुस्लिम उम्मा की बहनों बेटियों से मैं भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए, देखिए आके. जी इस वक्त मेरी एक भाभी मिसेस गफूर मलिक जो राचडेल यूके से खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाई हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम में, उनकी हमशीरा के मज़ार अक़दस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास उनको पुरसा देने के लिए मैं उनकी फीलिंग्स पूछना चाहूँगा क्योंकि पहली बार वो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं. तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं भाभी आपके? मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकती. मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी बहन को इस तरह के मसाइब से दो चार ना करें. बस यही मैं बस कह सकती हूँ. इससे यहाँ आके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि इनके भाई के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है. मैं बस यही सोच के मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या कहूँ. जो लोग अभी तक नहीं यहाँ पे आ सके, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, हिस्ट्री का नहीं पता, जो लोग अभी तक नहीं आ सके उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि यहाँ आए और अपने इस्लाम की हिस्ट्री को समझे. देखने से और सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है. जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो वो तो डिफरेंट होता है ना. तो बहुत अच्छा लगा और उनको आना चाहिए यहाँ पे अपनी हिस्ट्री के लिए, ज़ियारत के लिए आना चाहिए सब लोगों को. मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि यहाँ पे आके अपनी फैमिली के किस किस मेंबर के लिए दुआ मांगी और क्या क्या दुआएं मांगी? मैंने अपनी तमाम फैमिली के लिए, सब के लिए, डॉक्टर मलिक के लिए भी, इनके मशीरा के लिए, सब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाई को जो हमारे अज़ीज़ व करब जा चुके हैं दुनिया से, उनकी बख्शिश के लिए, सब के लिए मैंने दुआ मांगी और तमाम मुसलमानों के लिए मांगी.
डॉक्टर बिलावल मलिक साहब आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग इमरान शाह साहब ले गए हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आज आप सैयद को पुरसा देने के लिए आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा उस तरफ बैठी हुई मेरी बहनों को जो सैयदजादियां नहीं हैं, चूंकि आज 40वां चेलम है आज, और ये रवायत है ज़माने की कि जिसका कोई फौत हो जी उसके पास पुरसा देने के लिए लोग आते हैं। मैं उन तमाम अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो सैयदजादियां नहीं है, एक एक सैयदजादी के पास जाके बैठे, हाथ बांध के कहे, सैयदजादी बहुत अरमान है हुसैन के। ये रवायत है जमाने की, जब किसी का कोई फौत हो जाता है, इतलाएं की जाती हैं, बहनों को इतला की जाती है, बेटियों को इतला की जाती है, और फिर सब लोग कहते हैं कि बहन बड़ी दूर बस्ती है इसकी, जब तक बहन ना आए जनाजा नहीं उठाना। और फिर सुनने वालों, वो वक्त आता है बहनें आ जाती, जनाजा उठ जाता, और फिर वो दिन के फौत हुए दूसरा दिन सब लोग जो दूर से आए थे, जो करबो जवार से आए थे, वो घर वालों से इजाजत लेते अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और वो बेटियां, वो बहनें जो बड़ी दूर से आई थी, अपने ससुराल वालों के कान में जाके कहती है, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकती, मेरा जवान भाई मारा गया, मैं 40वें के बाद आऊंगी। आज 40वें आप सब लोग यहाँ पुरसा देने के लिए आए हैं। वह चश्मे तसव्वुर को लेके जाइए मोहल्ला बनु हाशिम में, सरकार अब्दुल्ला के उजड़े हुए आंगन में अपनी आंखों को लेके जाइए। शहजादी ज़ैनब बैठी है। ये एक रवायत है कि जब चेलम का दिन होता है, किसी का भी 40वां होता है, सारा दिन उसकी बहनें, उसकी बेटियां बहन डाल डाल के रोती हैं। और फिर जब शाम का वक्त होता है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, जो बच जाते हैं वो उनकी बहनों के पास आके बैठते हैं, पूछते हैं भाई की मौत कैसे हुई। ये एक रवायत है जमाने की। आज शहजादी ज़ैनब के पास सरकार अब्दुल्ला के उजड़े हुए आंगन में मोहल्ला बनु हाशिम और मदीना की औरतें इकट्ठी होकर बैठी हैं। शहजादी ज़ैनब से पूछ रही हैं, शहजादी जरा बताइए तो सही, कासिम की मौत कैसे हुई। या शहजादी शहजादी ये बताएं, जब ज़ैनब गई थी किसी ने पहचाना भी था या नहीं। मेरे भाई ने पूछा, जब सरकार अब्दुल्ला ने नहीं पहचाना था आजाद शाह साहब। शहजादी एक करीब आके कहती है, शहजादी अच्छा ये तो बताइए ओनो मोहम्मद का क्या हुआ। मेरी शहजादी एक एक को बड़ी बहादुरी से किस्से सुना रही है। एकदम शहजादी रुकती है, एक पूछती है शहजादी रुक क्यों गई। कहती है मुझे समझ नहीं आई, अली अकबर का लाशा हुसैन ने उठाया किस तरह था। मुझे समझ नहीं आई, शबीए रसूल का लाशा हुसैन ने किस तरह उठा लिया। मेरे करीब जब आती है, पूछती है शहजादी ज़ैनब, वो अली असगर तो अब बड़ा हो गया होगा, अली असगर तो अब बातें करता होगा। कहा चुप कर जाओ,
जो माँ को माँ नहीं कह सकता था उसने पानी कैसे मांगा। मैं किबला यज़दानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिह, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती। मुअज़्ज़ज़ ज़ायरीन, सारा दिन आप मजालिस सुनते रहे, अज़ादारी करते रहे। इस वक्त मुझे कोई तफसीली मजलिस नहीं पढ़ना है, सिर्फ रब्ते मसाइब के लिए चंद जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ। इरशाद कुदरत है, अल्लाह ने कहा है या रसूल अजरे रिसालत मांग लो, और नबी खुद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब है, एक मेरी इतरत है। ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि ये हौज़े कौसर पे पहुँच जाएं। रसूल का फरमान था, पैगंबर के इस फरमान के तहत कभी कुरान से अहले बैत जुदा नहीं हुए और कभी अहले बैत से कुरान जुदा नहीं हुआ। हमेशा अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ किया कुरान ने और कुरान का तहफ़्फ़ुज़ किया अहले बैत ने। मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई मेरी तमहीद। मैं दोबारा ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमेशा अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ किया कुरान ने और कुरान का तहफ़्फ़ुज़ किया अहले बैत ने। बदबख्त यजीद ने तख्त पे बैठ के यही कहा था कि लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क, बनी हाशिम ने इक्तिदार के साथ खेला था। ना कोई किताब आई थी, ना कोई वही नाजिल हुई थी। बस जब उसने इनकारे किताब किया तो मुहाफ़िज़ाने किताब ने कहा कि हम इस किताब का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बस तमहीद मेरी ख़त्म हो गई। जो मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में वो बस इतनी सी है। मैं इन्हें अपने लफ्ज़ों में कहता हूँ कि कुरान पे मुश्किल बनी तो हुसैन ने देख के कहा, कुरान परेशान न हो, तेरी ज़बरों को ज़बरदस्त दे के बचा लूँगा। और ऐ कुरान परेशान न हो, तेरी ज़ेरों को अपनी औलाद में जो सबसे ज़ेर होगा, बस आपकी तवज्जो हो गई, उसे देके बचा लूँगा। ऐ कुरान परेशान न हो, तेरी पेशों को अपनी औलाद में जो पेश पेश अली अकबर है उसे दे के बचा लूँगा। कुरान ने यकीनन बोल के कहा, हुसैन तू मेरी ज़बरों को भी बचा लेगा,
मेरी ज़ेरों को भी बचा लेगा, मेरी पेशों को भी बचा लेगा, लेकिन मेरा दुश्मन बदबख्त तो मेरा गिलाफ भी लूटना चाहता है। बस आपकी तवज्जो हो गई, मेरा गिलाफ भी लूटना चाहता है। जाहिर है कि इस जुमले पे मेरी यही मखदूमा जिसकी ज़री अक़दस के पास आप बैठे हैं, इसने बढ़ के कहा होगा, कुरान फिक्र न कर, तेरे गिलाफ को लूटने वाले हजार कोशिश करें लेकिन ज़ैनब सर की चादर देके तेरा गिलाफ बचा लेगी। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। इब्ने मुंजिर सहाबी है। इब्ने मुंजिर ने एक दिन मौला, आप तो रोए ना 16 दिन, बहुत रोते हैं आप, रोता हूं, रात को भी रोता हूं, और लोग आंसू रोते हैं लेकिन मैं आंसुओं के बदले खून रोता हूं। मौला अगर अपने पे तरस नहीं खाते, हम गरीबों पे तरस खाएं, आप हमारे इमाम हैं, आंसू रोना बंद करें। ये जुमला कहना था। अगर किसी शरीफ की मां बहन के सर से कोई बदमाश चादर उतार ले, उसे क्या करना चाहिए? जुमला कहना था कि मेरे मौला बानी शरीयत के फर्जंद देख के कहते हैं, बहन ज़ैनब चल जरूर, लेकिन तेरी इजाजत अब्दुल्ला के पास है। जब तक जनाबे अब्दुल्ला इजाजत ना दें, उस वक्त तक तुम नहीं जा सकती। बानी शरीयत की बेटी चलते चलते पहुंची अपने घर में, जहां पे उलमा फरमाते हैं कि जहां पे जनाबे अब्दुल्ला बिस्तरे बीमारी पे लेटे हुए थे, बिस्तरे बीमारी पे जनाबे अब्दुल्ला लेटे हुए थे, एक मर्तबा मेरी मखदूमा जाके अपने ही घर खाक पे सवालियों की तरह बैठ गई कि एक मर्तबा जनाबे अब्दुल्ला बिन जाफर देख के कहते हैं, ज़हरा दादी मांग तो सही। कहा भैया के साथ जाने की इजाजत मांगना चाहती हूँ। अदादारा जब कहा ना इजाजत मांगना चाहती हूँ, जनाबे अब्दुल्ला देख के कहते हैं, जा, ये मेरा घर नहीं तेरा घर है, जो जी चाहती है उठा के ले जा। मेरी मखदूमा अंदर गई, तबर्रुकात का संदूक खोला, तबर्रुकात का संदूक खोल के मां ज़हरा की चादर निकाली। अल्लामा फरमाते हैं, मां ज़हरा की चादर निकाल के वहां पे आई हैं जहां पे जनाबे अब्दुल्ला लेटे हुए थे। एक मर्तबा जनाबे अब्दुल्ला के पास आके मेरी मखदूमा ने 3 मर्तबा चादर को झाड़ा है। झाड़ के मेरी मखदूमा बताना यह चाहती थी, अब्दुल्ला तेरे घर से फकत मां की चादर लेके जा रहे। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अदादारा जब मेरी मखदूमा चलने लगी ना, जब चलने लगी तो एक मर्तबा जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं, ज़हरा ज़ादी सफर तूने कभी किए नहीं, सफर में मुश्किलात आ जाती हैं, तू जाफर तैयार की बहू है, ये 4 कनीज़ें हैं, ये तेरे साथ जाएंगी, ये सारा सफर तेरी खिदमत करेंगी। उलमा फरमाते हैं कि ये 4 कनीज़ें जो खिदमत के लिए जनाबे अब्दुल्ला ने साथ की, ये मदीने से चलते हुए इनका तस्करा मिलता है, रास्ते में इनका तस्करा मिलता है, करबला मक्के पहुंचे तो इनका तस्करा मिलता है, करबला के रास्ते में इनका तस्करा मिलता है। औज़ादारो ज़ाहिरो मखदूमा की जरी के पास बैठ के सुनने वालों, उलमा ये कहते हैं कि 10 मुहर्रम की सुबह तक इन 4 कनीजों का तज़किरा मिलता है, लेकिन जब आई है ना शाम गरीबा, जब आई है ना शाम गरीबा, तो फिर इन 4 कनीजों का तज़किरा नहीं मिलता कि ये कहां पे चली गई। अज़ादारों, साहिब किताब खुद रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि ये 4 कनीजें कहां पे चली गई। वो कहते हैं कि जब शाम गरीबा मखदूमा के सर पे चादर नहीं रही ना, जब मखदूमा के सर पे चादर नहीं रही ना, ये कनीजें सोच के मर गई कि जिसकी खिदमत के लिए आई थी
جب اس کی چادر نہیں رہی ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ کیا؟ عزادارو زیدی صاحب یہ جملہ کہا کرتے تھے، اور جس کی چادر کو اترتے دیکھ کے کنیزیں مر گئیں وہ مخدومہ خود زندہ کیسے رہی؟ عزادارو وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا پتہ چلا دربار یزید میں، جب دربار یزید میں یہ کارواں پہنچا تو حالت کیا تھی؟ آگے آگے سفید بالوں والی فضہ تھی، پشت پہ سر رکھ کے میری مخدومہ زینب کھڑی تھی کہ ایک مرتبہ بے غیرت سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے، وہ دیکھ کے کہتا ہے میرے باغی کا۔ عزاداروں میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، جب کہا نا میرے باغی کا، ایک مرتبہ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے اماں فضہ ہٹ، جس مقصد کے لیے زندہ تھی وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے۔ عزادارو اماں فضہ کو ہٹایا۔ اب سید مجھے معاف فرمائیں، علامہ زیدی صاحب کے یہ جملے ہیں اگر نہ ہوتے میں کبھی نہ پڑھتا۔ عزادارو اماں فضہ کو ہٹایا، اماں فضہ کو ہٹا کے میری مخدومہ نے سر کو جھٹکا دے کے بالوں کو پیچھے کیا۔ اور مجھ سے پوچھو تو صحیح، جھٹکا دے کے بالوں کو پیچھے کیوں کیا؟ عزادارو 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 ہاتھوں سے تو تب کرتی اگر ہاتھ آزاد ہوتے، ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بالوں کو جھٹکا دیا اور جھٹکا دے کے بالوں کو پیچھے کیا، اور پیچھے کر کے میری مخدومہ دیکھ کے فرماتی ہے اور بے غیرت سن، میرا بھیا نمازی تھا، باغی نہیں تھا۔ عزاداروں میں نے صبح بھی اس روایت کو عرض کیا، یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ایک اندھا صحابی بیٹھا تھا، جب اس نے آواز سنی تو وہ دیکھ کے کہتا ہے نا علی ابن ابی طالب، یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عزاداروں میری معظمہ بی بی اتنی عظمتوں والی تھی کہ اب جو بولی تو لہجہ علی نظر آ رہا تھا، یعنی زینب اس معظمہ کا نام ہے کہ دربار یزید میں جس کے لہجے کا بھی پردہ رکھا گیا، جس کے لہجے کا بھی پردہ رکھا گیا۔ ایک مرتبہ وہ صحابی دیکھ کے کہتا ہے نا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب کہاں سے آ گئے؟ وہ اندھا صحابی تھا، ساتھ والا صحابی دیکھ کے کہتا ہے شکر کرو اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے، تمہیں نہیں پتا آج نہ علی آئے ہیں، نہ علی کا کوئی بیٹا آیا ہے، بلکہ علی کی بڑی بیٹی زینب خطبے دے رہی ہے۔ عزادارو آپ کی پوری توجہ ہے، بس ثواب کی خاطر ایک روایت جسے میں کثرت سے پڑھا کرتا ہوں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ زہرا زادیاں جب پہنچ گئی ہے نا دربار یزید میں، تو یزید کی ایک بیوی تھی ہندہ، جو زہرا زادی سے کسی دور میں قرآن پڑھتی رہی تھی۔ روایت کے لفظ ہیں، علامہ عسکری نے لکھا کہ جب اسے پتا چلا نا کہ دربار میں کچھ قیدی آئے ہیں، مجھے معاف فرمائیے گا سید خاص طور پہ جب کہا نا، جب پتا چلا نا کچھ قیدی آئے ہیں، اس نے پیغام دیا یزید میں نے قیدی دیکھنے ہیں۔ عزادارو جب کہا نا میں نے قیدی دیکھنے ہیں، مجھے معاف فرمائیے گا یزید دیکھ کے کہتا ہے ہندا نہ آ، دربار کا ماحول مناسب نہیں، نہ دربار کا ماحول مناسب نہیں۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ دیکھ کے کہتی ہے میں نے ضرور قیدی دیکھنے ہیں۔ جب کہا نا میں نے ضرور قیدی دیکھنے ہیں، ایک کرسی لائی گئی اور رکھی وہاں پہ گئی جہاں زہرا زادی خاک پہ بیٹھی تھی۔ عزادارو یزید کی بیوی ہندا محل سے نکل کے آ کے بیٹھ گئی کرسی پہ۔ روتے ہم اس لیے ہیں، یزید کی بیوی کرسی پہ، زہرا زادی خاک پہ۔ جب خاک پہ بیٹھی ہے میری مخدومہ، یزید کی بیوی ہندا میری مخدومہ کی طرف منہ کر کے دیکھ کے کہتی ہے قائدن من ای بلادن انتن، قائدن بتا سکتی ہو تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ عزادارو جب کہا نا بتا سکتی ہو تم کس شہر کی رہنے والی ہو، میری مخدومہ سر نیچا کر کے کہتی ہے من مدینہ الرسول،
मदीनत रसूल का नाम आना था। साहिब माली के लफ्ज हैं साकतत हिंदुन अनिल कुर्सी, मदीने का नाम आना था कि हिंदा कुर्सी से गिर पड़ी। हिंदा कुर्सी से गिर के कहती है कायदन अगर मदीने से आई है मुझे इतना बता, अतारे फीना अली इब्न अबी तालिब, क्या अली इब्न अबी तालिब को जानती हो? अज़ादारो जब कहा ना कि अली इब्न अबी तालिब को जानती हो, मेरी मखदूमा देख के कहती हैं जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। अज़ादारो ये परेशान होके दूसरा सवाल करती है, ये देख के कहती है तारिफीना हुसैन इब्न अली, क्या अली के बेटे हुसैन को भी जानती हो? अज़ादारो मेरी मखदूमा देख के कहती है जैसे मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। अज़ादारो इसने तीसरा सवाल किया है, ये देख के कहती है तारिफीना अली इब्न हुसैन, क्या हुसैन के बेटे सज्जाद को भी जानती हो? मेरी मखदूमा फिर देख के कहती है जैसे मैं जानती हूं कोई नहीं जानता। अज़ादारो ये जुमला कहना था कि हिंदा परेशान हो गई। हिंदा परेशान होके देख के कहती है कैदन अगर सबको जानती हो तो अपना सर ऊंचा करो। मखदूमा ने सर ऊंचा किया, इसने अपना सर नीचे किया, ये अपना मुंह मखदूमा के कान के करीब ले जाके कहती है कैदन अगर सबको जानती है तो मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, तारिफीना ज़ैनब बिन्त अली, अगर सबको जानती हो तो इतना बताओ क्या ज़ैनब को भी जानती हो? अज़ादारो ये जुमला कहना था कि मेरी मखदूमा देख के कहती है हिंदा हिंदा कुरान पढ़ती रही पहचाना नहीं, कुरान पढ़ती रही पहचाना नहीं। अब जो पहचान गई ना यही ज़ैनब है। सर पीट के देख के कहते मखदूमा अगर आप ज़ैनब हैं तो जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास कहाँ? अगर तू ज़ैनब है तो जिस पे मान किया करती थी वो अब्बास कहाँ है? मेरी मखदूमा देख के कहती है पहचाना नहीं, वो जो घोड़े की गर्दन में सर लटक रहा है वो है तेरे मौला मुर्शद अब्बास का। अज़ादारो ये जुमला कहना था कि एक मर्तबा ये परेशान हो गई और परेशान होकर देख के कहती है मखदूमा सारे सर नेज़ों पे मौला मुर्शद अब्बास का घोड़े की गर्दन में क्यों है? ये जुमला कहना था कि मेरी मखदूमा देख के कहती है हिंदा इसे भी बड़ी मर्तबा नेज़े पे सवार किया गया लेकिन जब इसकी नजर मेरे बरहना सर पे पड़ती है फौरन गिर जाता है। कहता है ज़ैनब मैं शर्मिंदा हूं, काश तेरे भैया ने करबला में इजाजत दी होती। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना अय्यमुन कलिबन यनकलिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, या महमूद बिहक़्क़े मुहम्मद, या आला बिहक़्क़े अली, या फतर समावात बिहक़्क़े फातिमा, या मोहसिन बिहक़्क़े हसन, या कदीम अल-एहसान बिहक़्क़े हुसैन अलैहिस्सलाम। इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, इस बीबी की जरी का सदका, हम बीबी का भी सदका नहीं डालते हैं अल्लाह, इसकी जरी का सदका इन तमाम ज़ायरीन की दिली ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, इस बीबी का सदका, इस बीबी की जरी का सदका, इलाही यहाँ पे इसके हुजूर खड़े होके ऐ इलाही तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। इलाही जितने मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं उन्हें सेहते कामिला अता फरमा। इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मकरूज हैं इस सैयदा का वास्ता उनको कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। ख़ास तौर पे अंदलीब ज़हरा नकवी औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद हैं, इलाही उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। इलाही हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता, इसीलिए तो इनके दरवाजों पे आते हैं कि इनके तवस्सुत से तुझसे मांगे, इनके वसीले से तुझसे मांगे। ऐ अल्लाह हमें मांगने का तरीका आता ही नहीं, हम जैसा भी टूटा फूटा मांगते हैं, हम अपना इजहार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह तू तो अलीमुम बिज़ात सुदूर है, हमारे दिलों के राजों को जानता है। ऐ अल्लाह हमारी दिली ख्वाहिशात जो हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमारे जितने भी मरहूमीन
सालिहीन हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। यकीनन ये एक बहुत बड़ी सआदत हमें मुयस्सर हुई है। इस हवाले से कि मजहब मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरवीज जो है वो हुई है इस सिलसिले से कि जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब ने अपने टीवी DM डिजिटल पे हमारे इस सीरिया में जो इस वक्त चहलम हो रहा है उसको दिखाया है, और पूरी कायनात में इस हवाले से पता चला है कि मजहब आले मोहम्मद के मानने वाले जो हैं वो किस तरह से अपनी इबादत को करते हैं। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद डॉक्टर साहब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। मैंने इब्तिदा में आयत कुरान पढ़ी थी कि अजर रिसालत मांगा है अल्लाह ने बजरिया रसूल के। जाहिर है मिल्लत इस्लामिया का हर बंदा जो है वो अहले बैत रसूल से मोहब्बत रखता है, और मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब की ये मोहब्बत का आईनादार है कि वो तन्हा यहाँ पे नहीं आए बल्कि अपने साथ जो है वो अपनी फैमिली को लेके आए हैं, अपनी बेटियों को लेके आए हैं, अपने घर वालों को साथ लेके आए हैं, ताकि करीब से उनका खानदान जो है वो खानदान तहारत पे आने वाले मजालिम को देखे और सोचे कि खानदान तहारत के साथ क्या क्या जुल्म हुए थे। मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी खिदमत की। इलाही इनके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा, इनके भाइयों, इनके आइज़ा अकरबा की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत जो हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आप सारे साहिबान नहीं जानते लेकिन मैं बहुत करीब रहा हूं। ये जो ट्रांसमिशन चली है DM पे और अब भी चलेगी, कल भी इंशाअल्लाह जो है वो चलेगी इसी हवाले से, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस पे मेहनत करने वाले लोग जो हैं, जो पशे कैमरा लोग थे, उनमें जनाब यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस माजूर बच्ची जो है, इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बिहक़ सैयदा, इलाही उसको सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। एक शख्स के जो इस हवाले से बहुत मेहनत करता रहा इन दिनों में वो जनाब रहील अंजम साहब हैं, जो बैठ के इस सारी ट्रांसमिशन को आगे पहुंचाते रहे। इलाही उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। नासपासी होगी अगर मैं यहाँ पे इस दुआ में शामिल ना करूं अपने मोहतरम भाई जनाब मजर बुखारी साहब को, कि जो इस हवाले से डॉक्टर साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं और यकीनन हमारे भाई हैं। ऐ अल्लाह उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद DM डिजिटल की पूरी टीम की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। खास तौर पे डॉक्टर साहब के भाई, डॉक्टर साहब के अहले खाना, डॉक्टर साहब के जितने आइज़ा व अक़रबा हैं, इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। उन्हें हमेशा इसी तरह मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत का ये बेशबहा खजाना और ये तोहफा जो है ये अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद पहले भी वो मुहिब्बे आले बैत हैं, उनमें और ज्यादा मोहब्बत जो है वो पैदा फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे इस कारवां को लेके आने वाले जनाब सैयद अबरार हुसैन शाह साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत से हम सब की खिदमत की, बड़े खुलूस के साथ। वो मैंने जब बात की इस DM के हवाले से डॉक्टर साहब की ख्वाहिश का, बजरिया बुखारी साहब मुझे पता चला कि वो चाहते हैं कि वीज़े लग जाएं और वीज़े लगवा के वो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो मैंने अबरार शाह साहब को कहा कि 2 वीज़े लगवा ले DM डिजिटल वालों को। तो अबरार शाह साहब ने कहा कि सिर्फ मैं वीज़े नहीं लगवा के दूंगा बल्कि उनकी सारी जो है वो खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए कि पिछले साल मैंने ये ख्वाहिश की थी कि काश सीरिया में यानी मखदूमा ज़ैनब का ये चहलम जो है वो लाइव दिखाया जाए। मेरी चूँकि ख्वाहिश पूरी हो रही है लिहाजा मैं हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूँ। ऐ अल्लाह जनाब सैयद अबरार हुसैन शाह साहब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। जितने भी साहिबान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इलाही उन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे DM पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉलें की, बहुत ज़्यादा लोगों ने नाम बेनाम जो है वो हमें कहा कि बीबी के हरम में हमारे लिए दुआ करें। अब जाहिर है कि हम सबके नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे बीबी के हुजूर खड़े होके अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, ऐ मालिक इस बीबी का सदका जितने लोगों ने कॉलें की, जितने लोगों ने इल्तिमास दुआ के लिए कहा, उन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जब हम चलने लगे तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने इल्तिमास दुआ के लिए कहा। इलाही उन तमाम की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अगर कोई बीमार है तो उसे सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानियां दूर फरमा। अगर कोई दिली ख्वाहिशात रखते हैं तो उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आले रज़ा ज़ैदी साहब ने अपने लिए कहा था, इलाही उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। सैयद आदिल हुसैन शाह साहब ने मुझे कहा, इलाही
की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। मेरे भाई गुलजार और मेरे भाई मलक साबिर साहब, काज़मी फैमिली और बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे इल्तिमास दुआ के लिए मैनचेस्टर से कहा, इलाही उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। यहाँ पे एक हमारी मोहतरमा बहन हैं जिनका भाई जो है वो किडनैप कर लिया गया है, इलाही उसे रिहाई अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसके अलावा भी इस कारवां में बहुत ज़्यादा मोमिनीन और मोमिनात ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई थी। कुछ दुआएं मुझे याद हैं, कुछ मुझे याद नहीं है। इलाही उन सब की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद सैयद ज़ायगम साहब की बहन जो है वो बीमार है, उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। अंदलीब ज़हरा नकवी की वालिदा बीमार हैं, इलाही उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद फ़िज़ा काज़मी साहब इस वक्त बेहोश हो गई हैं, इलाही उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। यूनस और युसरा दो बच्चियां हैं वो बीमार हैं, इलाही उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। बुखारी साहब ने अपनी वालिदा के बारे में कहा था, इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हम सब के मरहूमीन जितने भी हैं, इलाही उन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद राजा साहब के बच्चे बीमार हैं, उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। मोहतरमा नसीर फातिमा की पोतियां जो हैं वो बीमार हैं, इलाही उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। नासिर अब्बास साहब ने कुछ इल्तिमास दुआ के लिए, इलाही इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। मैं बार बार अगर कहूँगा बहुत ज़्यादा लंबी दुआ हो जाएगी। सैयद मुनव्वर शाह साहब बीमार हैं, इलाही उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। हम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, इलाही तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जितनी भी दिली ख्वाहिशात हैं उनको मबनी बर शरीयत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मुल्क पाकिस्तान को शर्र शयातीन से महफूज फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद पाकिस्तान के अहले हल्लो अक़द जो हैं उनको बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद नईम साहब की ज़ौजा पाकिस्तान में बीमार हैं, उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उलमाए आलम का साया हमारे सरों पर महफूज फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अली हैदर साहब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मुल्क पाकिस्तान को शर्र शयातीन से महफूज फरमा। इनकलाब इस्लामी ईरान को मुस्तहकम फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सरकार इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा और हमें उनके जानिसारों में जगह अता फरमा। डॉक्टर साहब की बहन बीमार हैं, इलाही उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमा। हना ईमान बेटी हैं वो बीमार हैं, इलाही उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इसके अलावा भी जितने बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये चाहते हैं कि जनाब डॉक्टर लियाकत साहब को यहाँ हरम के इदारे की तरफ से गिफ्ट पेश करें और साथ ही जनाब सैयद इब्रार शाह साहब को भी ये गिफ्ट पेश करना चाहते हैं। रूशी इस वक्त जो बीबी सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो हरम है यहाँ इदारे के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से ये गिफ्ट पेश किया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा मेडल है किसी भी शख्सियत के लिए। और ये डॉक्टर साहब ने गिफ्ट किया और अब जो हमारे साथ हमारे काफ़िले के सालार जनाब सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब को गिफ्ट पेश किया जाएगा। नहनु मिन क़िबलना min qibal Dr. लियाकत अली और min qibal सैयद इब्रार हुसैन शाह बुखारी नशकुर समाहत जमील अशेख वले मुसाइद समाहत अबू अली जज़ाहुमुल्लाहु खैरा व नदउ अल्लाह सुब्हानहु व तआला अन युवफ़्फ़िक़हुम फिद्दुनिया वल आखिरह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أسعد الله مساءكم جميعا. باسمنا واسم متولي الحرم الزينبي الشريف نشكر حضوركم لزيارة هذه العقيلة زينب سلام الله عليه، ونشكر القائمين على هذا
الفوج الكريم، ونتمنى لكم زيارة مقبولة وإقامة طيبة في سوريا، وإلى اللقاء في زيارات أخرى إن شاء الله. اہلا وسہلا. اپنی طرف سے اور جو حرم کے متولی ہیں ان کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کیا ہے اور دعا کی ہے کہ خداوند متعال آپ کی یہ زیارات کو قبول فرمائے. آپ کے کاروان کی طرف سے جتنے بھی آپ نے اس حرم کی مالی معاونت کی ہے یہ آپ کے گروپ کی طرف سے جناب ڈاکٹر لیاقت صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ہماری بھی دعا ہے کہ خداوند متعال ڈاکٹر صاحب کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو خداوند متعال محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور فرمائے اور آپ تمام اور خصوصاً ڈی ایم کی ٹیم جو ہے اس میں خود ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ ان کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ فرمائے اور یہ ان کے جتنی بھی نیک حاجات ہیں خداوند متعال کو پورا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد وعجل فرجہ.